तो visible है ना screen? यस सर। So till now जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, we have discussed about the bulk hardening process. Today we are going to discuss the surface hardening process. के by there are some process through which we can harden the surface only, यानी कि not entire body of the or entire object, only the surface. यानी कि in some application there is a requirement to hard the surface only. So for surface hardening, heat treatment process are included the thermal process and thermochemical process. So thermochemical process, as the name is suggesting, यानी कि thermo means heats and chemical यानी chemical reaction. So heat and chemical reaction, by the application of heat and chemical reaction, surface hardness can be improved. And other is only there is only thermal process, no chemical reaction will take place. Only by the effect of the heat, यानी by increasing the temperature, by the effect of the heat we can hard the surface of the specimen or object. So thermochemical process including carbonizing, uh, nitriding, cyaniding, boronizing and chromizing, and in the thermal flame, induction, laser and electron beam. So these are the some thermochemical and chemical thermal process. In further sub classification. So in your syllabus only carbonizing and nitriding is included. So we will be discuss that things, and in your thermal flame and induction hardening, we will also go through that one. So thermochemical process, as we have already discussed, it is the यानी कि by the thermochemical process we are hardening the surface of the specimen or object. हमें क्या करना है, स्पेसिमैन हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी सरफेस को हमें क्या करना है, हार्ड करना है. तो हार्ड करने के लिए थर्मोकेमिकल प्रोसेस, अगर हम उसमें प्रोसेस थर्मोकेमिकल कर रहे हैं तो एज द नेम इज सेइंग, थर्मोमिस यानी कि हीट, तो हीट तो हम अप्लाई करेंगे, उसको हीट करेंगे एंड देन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस. सो इसमें जनरली क्या होता है, वी डिफ्यूज द अलाइंग एलिमेंट को हम उसमें डिफ्यूज करते हैं हार्ड करने के लिए सरफेस में बाय द केमिकल. सच लाइक कार्बन को अगर हम उसमें डिफ्यूज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम कार्बोनाइजिंग प्रोसेस. और अगर नाइट्रोजन को डिफ्यूज कर रहे हैं हार्ड करने के लिए सरफेस को, दैन इट इज नोन एज द नाइट्राइजिंग प्रोसेस. और इफ वी आर यूजिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ, अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो उसको कार्बोनाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, दीज आर द some other यानी कि combination process through which we can hard the surface of the object or specimen. So generally यानी कि in your syllabus only carbonizing and nitriding is included. So carbonizing and nitriding we will be going through that one. So as the carbonizing process has been shown here. So generally what we are doing here कि by heating, पहले हमने उसको हीट किया, now we have यानी कि we have added a chemical agent और catalyst हम उसमें ऐड किया, so that carbon can diffuse on the surface of the object or metal and it becomes harder. तो फर्स्ट स्टेप तो वही है, एज वी हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो तुम्हारा 3 स्टेप में इंक्लूडेड होता है. फर्स्ट स्टेप होती है तुम्हारा हीटिंग, सेकंड स्टेप होती है तुम्हारा we put the object at that particular temperature for some duration of time, holding, that is known as the holding and shocking, and third step is known as the cooling, depending upon the medium के what medium we are using. So these are the 3 basic steps involved in the heat treatment process. So here generally first of all we heat the object, यानी specimen के surface को हमने heat किया. इन केस ऑफ द बल्क यानी कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग, हार्डनिंग प्रोसेस, वी आर हीटिंग द मेटल, हीटिंग द थ्रू आउट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें थ्रू आउट हीट करना था, बट हियर वी हीट द सरफेस ओनली, यानी कि स्मॉल अमाउंट में हीट देनी होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्लियर? आवाज़ आ रही नहीं आ रही? हेलो, क्या आवाज़ समझ में नहीं आ रहा? क्या आवाज़ नहीं आ रही? तो आपकी आवाज बहुत गूंज रही है. कुछ कभी आ रही, कभी लग कर रहा है सर आवाज. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आवाज़ नहीं आ रही है. किसको नहीं आ रही आवाज़? जिसको आ नहीं रही है लेकिन एको कर रही है.
जिसको नहीं आ रही वो छोड़ के चला जाए क्लास, कोई परेशानी नहीं, अपनी घर का आराम कर। जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो छोड़ के चला जाए। और फ्रॉम टुमारो देर इज अनाउंसमेंट, only 5 to 6 minutes has been given to यानी कि I will not share the link through your email IDs, I will share the link through the यानी कि on WhatsApp ग्रुप पे मैं लिंक शेयर करूँगा, and only 5 to 6 minutes has been given to you। जो ज्वाइन करेगा ठीक है, जो ज्वाइन नहीं करेगा he can enjoy। so कार्बोराइजिंग के बारे में समझ में आया नहीं आया भाई? एनीवन बताओ भाई। हेलो रिपीट कर दीजिए सर। हैं? अरे जब से सो रहे थे क्या तुम लोग? नहीं सर। मुझे तो ऐसे लग रहा सो रहे हो तुम लोग। सो कार्बोनाइजिंग में क्या कर रहे हैं? वी आर डिफ्यूजिंग द कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट। क्या डिफ्यूज कर रहे हैं भाई? कार्बन। कार्बन। अरे तुमने इतना पढ़ लिया हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तुम लोगों को समझ में नहीं आता हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है? समझ में नहीं आ रही है तुम लोगों को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है? क्या कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में? कंटिन्यूसली क्लासेस चल रही है, 3-4 लेक्चर हो गए, तुम लोग अभी हीट ट्रीटमेंट के बारे में समझ नहीं आया? हीट ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसे यार रो रहे हो? एंड यानी कार्बोनाइजिंग होता है, यानी कि दीज आर द सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन द सरफेस ओनली, एंड वी नाउ इन कार्बोनाइजिंग प्रोसेस, बाकी स्टाफ को तुम्हें पता होगा, पता नहीं क्या करते हैं। इन कार्बोनाइजिंग प्रोसेस वी आर डिफ्यूजिंग द कार्बन ऑन द सरफेस, एंड इट हैज शोन टू यू कि यहाँ पे दिखाया गया है दीज आर द आयरन एटम्स हैं, और कार्बन को हम डिफ्यूज कर रहे हैं। कार्बन के एटम का साइज जो होता है शॉर्ट होता है, सो सिंपली दिस कैन बी ऑक्यूपाई द स्पेस, ये जो वाइट्स है इसके अंदर इंटरस्पेशियल स्पेस है, दे कैन ईजिली, जब उसको हम केमिकल रिएक्शन के यानी हीट करके उसको डिफ्यूज करेंगे तो दे कैन ईजिली occupy these interstitial and white position, and this surface now becomes hard and there is no carbon atom here, यानी कि वेरी माइनर क्वांटिटी में यहाँ पे कार्बन एटम होंगे। ओनली वी आर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ओनली हार्ड द सरफेस ओनली, नॉट थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, यानी कि वी वांट टू, हमें इतनी ही ऑब्जेक्ट में क्या करना है, बस सरफेस को हार्ड करना है, बाकी इसमें जा रहे नहीं यार, इससे कोई मतलब नहीं है। सो ओनली 1 mm या उससे भी कम साइज के यहाँ पे यानी कि बहुत कम माइनर क्वांटिटी में क्या करना, डिपोजिशन लेयर चढ़ाने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे कार्बन एटम्स को क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें बाकी बहुत सिंपल सा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वही सब है इसमें, बाकी कोई नया नहीं है। बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन द सरफेस एंड डिफ्यूजिंग द कार्बन प्रोसेस बाय द केमिकल रिएक्शंस। काम मतलब ये सिंपल सी मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट को हीट किया, हीट करने के बाद किसी ऐसे कंटेनर में रख दिया जिसमें कार्बन जो है डिफ्यूज़ हो रही है, यानी कार्बन जो है रिलीज हो रही है। अब जब कार्बन डिफ्यूज़ हो रही है यानी किसी कार्बन के कंटेनर में उसको रखेंगे हीट करके, तो कार्बन डिफ्यूज़ उसकी सरफेस पर आ जाएगी। कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। सोते तो रहते हो तुम लोग। फर्दर ये तुम्हारा जो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी, कि ये तुम्हारा गैसियस प्रोसेस है और या सॉलिड प्रोसेस है, यानी कि वी आर डिफ्यूजिंग द कार्बन इन सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम। इट आल्सो डिपेंड, यानी जिस हमने हीट करने के बाद स्पेसिमेन को जिसमें रखा है वो लिक्विड मीडियम है, जैसे कि हम क्विंचिंग करते थे, लिक्विड मीडियम है, या कोई गैस मीडियम है, या फिर कोई जो है तुम्हारा सॉलिड मीडियम है। सो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। वो सब मैंने नोट्स में दे रखा, तुम लोग खुद पढ़ोगे। पैक कार्बोनाइजिंग होता है और तुम्हारा वो होता है नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं हम, सिंपली
नाउ अगेन वहाँ तो हम कार्बन को डिफ्यूज कर रहे थे ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट। इन नाइट राइडिंग वी आर डिफ्यूजिंग द नाइट्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट। और सिंपली क्या करेंगे, यू आर वेरी मच अवेयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व फर्स्ट हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग। सो हमने इसको हीट कर लिया है। नाउ हीट करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, डिफ्यूज करना है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन जो है किसी केमिकल रिएक्शन से डिफ्यूज होगी। सो हमने किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि अमोनिया को डिसॉल्व करके हमने नाइट्रोजन बना ली, अमोनिया को डिसॉल्व करके हमने नाइट्रोजन बना ली। नाउ दिस नाइट्रोजन विल डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन विच इज मेड ऑफ द स्टील। जो हमारा स्टील का बना हुआ स्पेसिमेन है उसका, उस पर क्या होगी, हमारी ये डिफ्यूज होगी और इट विल मेक ए, जो तुम्हारा ये इसमें डिपोजिशन हो जाएगी। और डिपोजिशन होने में जो टाइम लगता है, यहाँ पे दे रखा है कि इट विल टेक 21 to 100 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज, कि हमें कितने साइज को, कितनी नाइट्रोजन को कितनी अंदर तक पेनिट्रेट करना है उस मेटल के अंदर। सो अगर इफ़ यू वांट टू यानी कि उसके अंदर हमें डिसॉल्व करना है, अगर नाइट्रोजन 0.5 mm की लेयर बनाने के लिए नाइट्रोजन की इनसाइड द स्टील मटेरियल, इट अबाउट टेक 100 आवर्स। सो ओनली वेरी स्मॉल, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3 स्मॉल अमाउंट में हम नाइट्रोजन और कार्बन को डिसॉल्व करते हैं ऑन द सरफेस, सो दैट के सरफेस क्या हो जाए, तुम्हारी हार्ड हो जाए। हार्ड तो मतलब कि अंदर सिंपल से मैंने एग्जांपल तुम लोगों को बता दिया, वेरी सिंपल। ये सिंपल क्या है कि हमारे पास जो है, हमारे पास स्टील है, स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन के बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है उसको अगर हम ऑक्यूपाई कर लेंगे तो सरफेस बिकम्स हार्डर। सिंपल सी बात, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। फिनोमेना हैज़ बीन ऑलरेडी यहाँ पे ये दिखाया गया कि दीज आर द, यानी कि ये एटॉमिक लेवल पे क्या तुम्हारा ये आयरन है और आयरन के बीच में स्पेस है। अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव द सरफेस प्रॉपर्टी देन वी विल, अगर इसमें इसके बीच में जो इंटर स्पीशियल स्पेस है, इसमें अगर कार्बन को डिफ्यूज कर रहे हैं तो ये कार्बनाइजिंग हो गया। इफ वी आर डिफ्यूजिंग द नाइट्रोजन देन इट बिकम द नाइट्राइडिंग प्रोसेस। और अगर कार्बन नाइट्रोजन का मिक्सर कर रहे हैं तो वो कार्बन नाइट्राइडिंग हो जाता है। सिंपल से ये प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा ड्राइविंग नहीं है। थर्मल हीट प्रोसेस इंक्लूडिंग, यानी कि थर्मल प्रोसेस में क्या होता है, वी आर नॉट, यानी कि नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, यानी कि इन केस ऑफ द थर्मल हार्डनिंग प्रोसेस वी, यानी कि वी हार्ड द सरफेस और स्पेस ऑफ स्टील ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी फ्लेम हार्डनिंग होता है, इंडक्शन हार्डनिंग होता है, लेजर हार्डनिंग होता है, इलेक्ट्रॉन बीम हार्डनिंग होता है। सो बाय यूटिलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी और दिस मेथडोलॉजी वी कैन मेक द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन हार्डर। हम स्पेसिमेन जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस को हम फर्दर हार्ड कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दिस फॉलोइंग थर्मल प्रोसेस। So just like a flame hardening, induction hardening, laser hardening, electron beam hardening. So these are the technology which are nowadays used in industries to hard the surface of the specimen which is made of the steel or some other metal. So we will be discuss one or two in this. So just like it has been shown here कि flame hardening process में हम क्या करते हैं. So what is happening? Anyone tell me कि what is happening here? क्या हो रहा है यहाँ पे? Anyone? सर फ्लेम से उसको हॉट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हार्डनिंग हो रही है। फ्लेम, ठीक है, फ्लेम कर रहे हैं, वेरी गुड। तो तुम लोगों ने वेल्डिंग वगैरह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में क्या होता है, फ्लेम निकलती है नहीं निकलती है? यस सर, ऑक्सी एसिटिलीन गैस। हाँ, तो इसमें भी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या तुम्हारा इसमें कोई ना कोई तो इसमें जो है, जो इसमें समझ करो ऑक्सी एसिटिलीन ही जनरली हम इसको यूज़ कर रहे हैं हार्ड करने के लिए। ऑक्सी एसिटिलीन गैस से ये क्या हो रहा है, तुम्हारा ये हीट निकल रही है। अब हीट क्या निकल रही है, ये सरफेस, इसके देयर नंबर ऑफ वेज हैं इसको हार्ड करने के। जैसे कि हम एक कंडीशन ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये क्या है, वर्क पीस रोटेटरी है और हमारा ये क्या है, स्टेशनरी है, तो इसको स्टेशनरी कहेंगे। और अगर हमारा ये दोनों क्या है रोटेटरी है तो उसको हम स्पिनिंग फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। सो दैट्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द नोट्स वो सारी चीज़ें। बट इसका फंडामेंटल क्या होता है ये समझ लो। सो फंडामेंटल और कंसेप्ट बिहाइंड द फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस इज दैट कि हमारे पास फ्लेम होती है। फ्लेम का मतलब होता है जनरली टू हीट द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हीट करेगी। ये सरफेस है, सपोज करो वी वांट टू मेक दिस सरफेस, इसको हमें हार्ड करना है। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट इस यानी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ओनली दिस वी वांट टू मेक दिस हार्डर। तो इसको हार्ड करने के लिए इसको रोटेट करना कंपलसरी है नहीं है भाई? तभी तो चारों तरफ, या तो हम फ्लेम को चारों तरफ से रोटेट कराएं या फिर इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएं, तभी तो सही से हार्डनिंग होगी ऑल साइड से, या ऐसी हो जाएगी।
वहीं So से रोटेट कराना पड़ेगा। depending क्या upon कर the size of the object and easiness, कि कैसे इजी रहेगा, या तो हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करा लेते हैं या फिर हम खुद ही, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बिगर साइज का उसको रोटेट कराना पॉसिबल नहीं है तो जो ऑपरेटर होता है वही क्या होता है उसके चारों तरफ जो है किसी अरेंजमेंट के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू उसके चारों तरफ मूव करता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग्स, बट फंडामेंटली होता है कि इसमें क्या होता है, हम फ्लेम निकलती है, फ्लेम का पर्पस क्या होगा, एज वी हैव ऑलरेडी अवेयर कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व द, सबसे पहले हम उसको हीट करेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे, उसके बाद कूलिंग करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हीट कर रहे हैं, किससे हीट कर रहे हैं, जो हमारी फ्लेम है फ्लेम से हीट कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस यानी कि एक कंसाइज स्पेस पे कर रही है, पूरे स्पेसिमेन पे नहीं कर रहे, स्पेसिमेन के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर उसको हीट कर रहे हैं। ये से नो बेल्डिंग में यही तो होता है। ये बेल्डिंग में अगर दो स्पेसिमेन को हमें बेल्ड करना होता तो सारे सारे पोर्शन को थोड़ी ना बेल्ड करते हैं, ओनली दैट पोर्शन विल बी कमिंग टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट विच वी, दो पीसेस जो जिनको हमें बेल्ड करना है। सेम इसमें भी वही है कि जिस पॉइंट को, जिस पर्टिकुलर लोकेशन को हमें क्या करना है, हार्ड करना, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। उसके बाद कूलिंग करने के लिए इसमें क्या होता है, दो यहाँ पे टॉर्च गिवन है। एक टॉर्च से तुम्हारा जो है यानी कि इन दिस जो हमारा ये जो टॉर्च है, यानी ये जो होल्डर है, होल्डर में दो टॉर्च है। एक से हमारी क्या निकल रही है, फर्स्ट वन से हमारी जो निकल रही है वो निकल रही है, सपोज करो हीट निकल रही है इससे, और दूसरे वाले से क्या निकल रहा है, व्हाट इज कूलेंट। कूलेंट, यानी कि हाँ सही बात है। जैसे दूसरा क्या है हमारा कूलेंट, यानी वाटर, या सब कूलेंट सबसे इजी वाटर ही होता है, इजीली अवेलेबल होता है, और इसको हम कूलेंट भी कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ से वाटर और कूलेंट जो है हमारे यहाँ से आ रहा है, कूलेंट और वाटर, ठीक है। ये हमारा ये यहाँ से दोनों टॉर्च से अलग अलग, इसका कंट्रोल जो ऑपरेटर के हाथ में होता है कि कितनी क्वांटिटी में निकालना, तो टॉर्च से हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो। सो एक तरफ से क्या होता रहता है, हम हीट करते रहते हैं, दूसरी तरफ से साइमल्टेनियसली उसको रैपिडली पिंच करते रहते हैं बाय यूजिंग, यानी कि रैपिडली तो पिंच कर रहे हैं, ये सुनो। यस सर। सो दिस इज द कंसेप्ट कि हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद कितने, दोनों के बीच का कुछ एंगल है, देयर इज अ एंगल बिटवीन द हीटिंग फ्लेम यानी कि हीटिंग टॉर्च एंड कूलिंग टॉर्च। सो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ टाइम गैप, होल्डिंग टाइम है, यानी पर्टिकुलर उस टेम्परेचर के लिए, कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ टेम्परेचर के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी रख रहे हैं। ये सुनो, अरे ये सुनो बता, अगर दोनों एक साथ निकलती तो, यस सर। दोनों एक साथ निकलती यानी कि एंगल से, यानी कि दिस एंगल इज कंट्रोलिंग, यानी कि वो होल्डिंग टाइम है, यानी कि हमने 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, जितना भी हो, 1 मिनट के लिए, डिपेंडिंग रोटेशन इसका डिपेंड करेगा या एंगल डिपेंड करेगा। तो हम सपोज करो हमने हाफ मिनट के लिए, यानी कि बहुत स्लोली रोटेट हो रहा, और हाफ मिनट का हमने इसमें गैप लगा रखा है कि बिकॉज ये जो होते हैं तुम्हारे ये वी आर परफॉर्मिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन द सरफेस ओनली। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम कम टाइम में ही कर देते हैं। तो हमने हीट किया, उसके बाद थोड़े बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको उसी टेम्परेचर पर रखा, उसके बाद हमने उसको कूल कर दिया। सो ये हमारा एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया। बट हेयर वी आर नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द थर्मल सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। सो इसमें ये तुम्हारे फ्लेम हार्डनिंग है। अब ये तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, यानी आई हैव टेकन दिस डायग्राम, बट तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे कि हम लिखा है प्रोग्रेसिव फ्लेम हार्डनिंग, तो प्रोग्रेसिव स्पिनिंग हार्डनिंग है। तो प्रोग्रेसिव यानी ये होती है तुम्हारी प्रोग्रेसिव में, यानी सिंपली क्या हमारा वर्क पीस क्या है तुम्हारा स्टेशन जो हमारा स्टेशनरी है, और फ्लेम को हम मूव करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोग्रेसिव फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग, अरे बताओ भाई व्हाट इट बिकम्स। सर वर्क पीस स्टेशनरी है, और वो हाँ यानी टॉर्च जो है हमारा ये दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बर्नर की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, यानी कि यहाँ से फ्यूल गैस निकल रही है, वो तुम्हारी इस तरफ मूव कर रहा है, वो इस तरफ मूव कर रहा है, और कूलेंट जो है यहाँ से निकल रहा है, दिखा रखा है, उसके बाद कूलेंट निकलता रहेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह मूव कर, इस तरह की, बल्कि डायरेक्शन थोड़ी इधर होनी चाहिए, गलत दे रखी है डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लेम आगे चलेगी, कूलेंट उसके पीछे चलेगा, तभी तो ये हार्ड हो गया सरफेस। दिख रहा है कि आफ्टर हार्डनिंग दिया सरफेस हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है हमारी, ये सब दिस ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है, दिस यानी कि दिस ओनली मूविंग, यानी हमारी टॉर्च मूव कर रही है। यस नो ऑपरेटर जो है टॉर्च को मूव करा रहा। दूसरे में यह दूसरी कंडीशन में यही सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। अगेन ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा थर्मल, बट इसमें क्या है
ऑब्जेक्ट इज आल्सो रोटेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, रोटेट कर रहा है, तो प्रोग्रेसिव स्पिनिंग हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं इसको। इसमें क्या रहा, ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एज वेल एज फ्लेम यानी कि जो ऑपरेटर है वो भी उसके तरफ मूव कर रहा है, यानी वो भी थोड़ा थोड़ा उसको रोटेट करा रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स नहीं है। तो दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव स्पिनिंग हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा। और अगर सिंपली स्पिनिंग हार्डनिंग प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट कर रहा है और हमारा टॉर्च जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने फिक्स कर दिया है। क्लियर? यस सर, यस सर। सो ये तो तुम्हारा फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, यानी कि हम फ्लेम से हीट कर रहे हैं और कूलेंट से बोल कर रहे हैं, सिंपल से यहाँ पे हार्ड सरफेस में मिल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ये फ्लेम हार्डनिंग होता है। उसके बाद एक और तुम्हारा ये थर्मल प्रोसेस होता है, दैट इज द इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। सो हियर यानी कि टू हार्ड द, ये जो कैम शाफ्ट दे रखी सबको, क्रैंक शाफ्ट दिख रही सबको, क्रैंक शाफ्ट सर दिख लिया। सो बिफोर द यानी कि सॉरी बिफोर द यानी कि बिफोर द हार्डनिंग द क्रैंक शाफ्ट इज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक दिस, यानी कि बिफोर द हार्डनिंग इट इज मेड ऑफ द स्टील, स्टील की बनी हुई है, एंड बिफोर द हार्डनिंग इट इज लुक लाइक दिस, बट आफ्टर हार्डनिंग इट बिकम्स लुक लाइक दिस। सो देयर इज अ चेंज इन द कलर और नॉट? अरे ये से ना बताओ, चेंज की वाला, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग द हार्डनिंग प्रोसेस ऑन द सरफेस, सरफेस को हम हार्ड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई एज इन द प्रीवियस स्लाइड इट इज हैज बीन शोन, यहाँ पे ब्लैक से दिखाया गया था, बट ब्लैक नहीं होता, ग्रे कलर हो जाता है, हार्डनिंग करने के बाद उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, ग्रे कलर हो जाता है, डार्क हो जाता है कलर। सो यहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग दे हैव बीन शोन बाय द ब्लैक लाइन। सो सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो गया, तुम्हारा डार्क ग्रे हो गया। यस या नो? यस सर। यस सर। सो यस सर। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इन द यानी फ्लेम हार्डनिंग में तो हम फ्लेम यूज कर रहे थे, यानी कि गैस यूज कर रहे थे, एंड दिस इज द इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। तो वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फॉर इस एग्जाम्पल को फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के। यहाँ पे क्या तुम्हारा दिखाया गया है कि जैसे कि ये तुम्हारा ये इंडक्शन है, हमारा ये हमारे पास ये इंडक्शन है, इंडक्शन कॉइल है, ये क्या हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, इंडक्शन कॉइल है, जिस इंडक्शन कॉइल है, और इसमें से क्या होगा, इंडक्शन कॉइल में से ड्यू टू द मैग्नेटिक कोलैप्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो है जिसमें जब फ्लो होगी, सो जैसे कि ब्लोअर होता है, ब्लोअर में से हीट निकलती है, और वो तुम लोगों ने वो भी देखा होगा, हीटर जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, नहीं बना होता सर। सो उसमें क्या होता है कि वो उसका व्हेन इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू द हीटर, सो उसका जो वायर होता है उसका कलर ही चेंज हो जाता है। देखने में तो सिंपल ब्लैक, वैसे तो सिंपल वो ब्लैक होता है, लेकिन रेड सेम ऐसी कलर का हो जाता है। ये चलो बताओ। यस सर। यस सर। सो सेम फिनोमेनन इज अप्लाइंग हियर कि वी आर, यानी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से वो इंडक्शन कॉइल में वो उसका क्या हो गया, वो रेड हॉट हो जाती है, यानी कि सिंपली ये हीटिंग का काम करेगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्या काम करेगी भैया? हीटिंग का, यानी कि अभी काम करेगी जो अभी हमें हीट की जो इन द प्रीवियस केस वी हैव टेकन हीटिंग सोर्स, वी आर यूजिंग द गैस, हम हीटिंग सोर्स गैस यूज कर रहे थे, और प्रीवियस उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, हीट भी यूज कर रहे थे, बट हियर वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज कर रहे थे, दैट्स व्हाई इसको हम इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं है, अब इसमें इंडक्शन हीट हो जाएगा, हीट करने के बाद इसको हम फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यानी फॉर दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो सर ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हीट होगा ना? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हीट होगा। अब इसमें हम स्पेसिमेन को क्या है कि हमारे पास ये इंडक्शन कॉइल होती है, इंडक्शन कॉइल में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रखने के बाद वो जो हीट हो जाता है तो उस पर सरफेस, यानी कि वो ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी करंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं उसकी करंट की। सो हाई फ्रीक्वेंसी करंट व्हेन विल पास थ्रू दिस इंडक्शन कॉइल, सो देयर इज, यानी कि हीटिंग उसमें ज़्यादा होगी, और जैसे ज़्यादा हीट होगा उसकी सरफेस क्या होती रहेगी, जो सरफेस इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, यानी ऑब्जेक्ट की ओनली दिस सरफेस बिकम्स हार्डर। उसको अगर रोटेट करना तो हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करा के फिर दोबारा दूसरी सरफेस को करेंगे, बट ये पूरी कंप्लीटली क्या, ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीटली इसके अंदर ग्रेस्प हो जाता है, तो सरफेस ओनली द सरफेस बिकम्स हार्डर। यानी सपोज करो कि अगर ये हमारे पास जो इंडक्शन ये यहाँ पे है, ये इस कंडीशन में यानी इसी शेप की बनी हुई है, यहाँ पे तो गियर को ये कर रहे हैं, दे आर, यहाँ पे ये इंडक्शन कॉइल है, इंडक्शन कॉइल में किसको हार्ड कर रहे हैं भैया? गियर को कर रहे हैं। सो अगर हमारे पास ये गियर की सरफेस जो है हार्ड हो रही है, और अगर सिंपली तो ये जनरली इंडक्शन कॉइल जो होती है वो सर्कुलर यानी सिलिंड्रिकल शेप में होती है। सो थ्रू आउट जो हमारी सिलिंड्रिकल शेप की जो हमारी सरफेस होगी वो पूरी की पूरी हार्ड हो जाएगी बाय दिस इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस।
सो करंट यहाँ पे क्या हो रही है, प्ले कर रही है मेरे मेजर इंपॉर्टेंट रोल कि इट्स ड्यू टू पासिंग द करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड और मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट जो होती है डिफ्यूज हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट एंड इट बिकम्स हार्डर। क्लियर? Yes, sir. सो दीज आर द सम, यानी कि सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस थे जिसमें जो हमने डिस्कस किए। दिस इज ऑल अबाउट द यही तुम लोग की जो है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में यही थे तुम्हारे फ्रेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, तुम लोग यही पढ़ लो और जितना पढ़ाया तुम्हें सफिशिएंट है, यानी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, इतना ही आता है। तो यू मस्ट बी अवेयर कि सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कौन से होते हैं। तो थर्मोकेमिकल में कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, और इन केस ऑफ द thermal surface hardening process we have the flame hardening, induction hardening, electron beam hardening or laser beam hardening. So laser beam hardening and electron beam hardening we did not discuss. So there is if you want to you can go through, but जो मैंने डिस्कस किया वो तो तुम लोगों को पढ़ना ही है। So this is the small topic for today class and I hope कि क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यस या नो? यस सर। सिंपल Yes, sir. ऑलरेडी हमने हीट ट्रीटमेंट Yes, sir. इतना पढ़ लिया है, वो तो ये तो एक इसी का एक स्मॉल जो था वो फर्दर एक्सटेंशन था उसका। सो आज के लिए इतना ही है और कल देखते हैं क्या करना है।